Yes, I'm audible now. Yes, sir. Yeah. So in the last class, what we were learning. Sir, last class we were learning about Hindu Arabic numbers. Yes, we learned about numbers, है ना? The introduction of the numbers. Numbers are just. They are just. What are numbers? Yes, sir. What are Sir, numbers? numbers are symbols. Yes, numbers are just symbols. Okay. After that, we see the detailed classification of number, that we classify the numbers into different ways, है ना? The first one is Hindu Arabic number, and the second is Roman number, right? After that, we learned about Hindu Arabic number. How many digits are in Hindu Arabic number? 10 digits. 10 digits, right? What are they? Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, you should always start from 0, not 1. Okay? Yes. So it is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's all, right? Means we can say 0 to 9. है ना? We can say 0 to 9. Is it clear? Okay? Yes. So any number, okay, that you can see or that you know, all number are made of these 10 digits of Hindu Arabic numerals, right? Okay. Yes, sir. Now let's see here. We know, after this we know about counting numbers, right? है ना? We know about the Yes. counting numbers. Counting number start from, tell me. Counting number starts from, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yes, it starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6, dot dot dot. It will go till Infinity. infinity, है ना? We can say infinite, right? Or infinity. This is the sign for infinity. Okay? Is it clear? Yes, sir. हाँ, means Yes, sir. which has no end point, है ना? Which has no end point. Okay? So the number starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6, dot 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 till infinity. These numbers are known as, can you tell me? These numbers are known as, the one of the name is counting numbers, right? There is also another name for these numbers. Can you tell me what is the name, or what the name you will give to this number? Natural numbers. Natural number. These numbers are known as natural numbers, right? है ना? Sir, because they do not include 0. Natural number. Okay. Now, for remember, you can just apply a trick. Okay. The trick is, as you can see, 1, 2, 3, 4, 5, 6 all exist in our nature, right? How many marker I have? See, 1 marker. one marker. Now how many marker I have? 2 markers. Two markers. Okay. Suppose I have 3 apples, 4 bananas, है ना? So as you can see, all these are exist in our nature or in our surroundings, right? है ना? But is 0 exist? Is 0 exist? No. है ना? If I, as you can see, I have no apple in my hand, है ना? So there is no apple in my hand. It doesn't exist, है ना? For now, as you can see here, right? So I can say that ki I have zero's apple. I have 0 apple. Okay? Is it clear? But from 1, 2, 3, 4, 5, 6 till infinity, you can see ki all these are exist in our nature or surroundings, right? है ना? Yes, sir. Suppose you have a water bottle, you can count it, right? You can count it. Suppose you have 2 maths copies,
you can count it, it exists, right? So in this way you can remember it ki these are known as natural number, the number which exist in your nature. Okay, this is not the definition, this is just trick for your understanding. Okay, is it clear or any doubt? No. ठीक ना? No. कहने का मतलब क्या हुआ, समझिएगा, नेचुरल नंबर नाम से ही समझना है, ऐसे नंबर जो आपके नेचर में हो, है ना? तो नेचर में कैसे नंबर होंगे, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आई हैव 1 मार्कर, 2 मार्कर्स, है ना, 3 एप्पल्स, 4 लड्डूज, लाइक दिस. लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि आई हैव नो एप्पल, ओके, आई हैव नो एप्पल, तो मेरे पास जब कोई एप्पल है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसे तो हम जीरो मान रहे हैं. और जीरो कहने का मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है नेचर में, है कि नहीं? Yes, sir. तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, जीरो को नहीं रखेंगे. ठीक है, ये जस्ट याद करने का एक ट्रिक है, ठीक ना, समझने के लिए आप जस्ट इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं कि ऐसे नंबर जो आपके नेचर में सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो, वही नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स. और वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो 1. कहाँ से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम 1. तो वी कैन से दैट कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, राइट? ऑल Yes, sir. counting numbers are called, क्या कहेंगे हम उन्हें, नेचुरल Natural number. Okay, is that clear? Yes, sir. Now the second point, natural number starts from, natural number starts from, tell me, it starts from, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मैंने ये नहीं पूछा देव कि व्हाट आर नेचुरल नंबर, मैंने बोला कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पहला जो नेचुरल नंबर है वही बोलना है ना. यस, देन व्हाई आर यू सेइंग 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस? ओके, ऑलवेज लिसन माय क्वेश्चन केयरफुली. ओके, आई सेड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है. तो जहां से शुरू हो रहा है आपको सिर्फ उस नंबर के बारे में बोलना है ना, कि सारे नंबर के बारे में बोलना है. टेल मी. Yes, sir. व्हाट? यस सर, सिर्फ उसी नंबर के बारे में बोलेंगे ना. Yes, sir. या सो हियर वी विल राइट कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट गोज टिल, It goes till infinity. इन्फिनिटी. ठीक है, इन्फिनिटी ये साइन रहा, इन्फिनाइट कहिए, इन्फिनिटी कहिए. ठीक है, कहने का मतलब कि जिसका कोई अंत ना हो, है ना, देयर इज नो एंड पॉइंट, दैट इज नोन एज इन्फिनिटी. ठीक है, अगर आपने 100 कहा तो मैं 100 प्लस 1 कर दूंगा, 101 हो जाएगा, राइट? अगर आपने 1000 बोला, मैं अगेन प्लस 1 कर दूंगा, 1001 हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने 1 लाख बोला, मैं अगेन प्लस 1 कर दूंगा, 1,01,000 हो जाएगा. इज इट क्लियर? अगर आप 1 करोड़ बोलते हैं, कितना बोलते हैं, 1 करोड़ अगर आप बोलते हैं, मैं अगेन प्लस 1 कर दूंगा, तो फिर ये 1 करोड़ 1 हो जाएगा. ओके, ठीक है. अगर आप 10 करोड़ बोलते हैं, मैं अगेन प्लस 1 कर दूंगा, 10 करोड़ 1 हो जाएगा. अगर आप 99 करोड़ बोल रहे हैं, 99 करोड़ 99,99,999 प्लस 1 हम कर देंगे, देन वी विल गेट द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर. ओके, सो इट विल नेवर एंड, इट विल नेवर एंड. ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से कि नंबर्स कैन नेवर बी एंड, इट गोज टिल इंफिनिटी. इज इट क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक डिटेल ऑफ नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर. इज इट क्लियर? ठीक है. Yes, sir. अब आपने ऑड नंबर और इवन नंबर भी पढ़ा होगा ना, है कि नहीं? Yes, sir. ऑड नंबर, Yes, sir. ऑड नंबर, कैन यू डिफाइन ऑड नंबर, Um, ऑड एंड इवन नंबर?
यस 1 minute, sir. I think so. No. ये सारा तो बेसिक चीज है देव. ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स आर टू बेसिक चीज ना, बेसिक थिंग्स. Sir, odd numbers. You have already learnt in 3/4 class. We learned this points in our sir. 3/4 class. Sir, yeah, sir. Huh. Even numbers are 0, 2. No, I am not asking. No, I am not asking the examples of even number. I said, tell me the definition of even number or the meaning of even number. What do you know about the even number? To which Sir, number? Even number means, sir, even number means skipping one number and telling, sir, like 1, 2, 3, and 4. Like that, sir. So 2, 3, 4 are even numbers. Sir, like divisible by 4. Divisible by 2. Divisible by 2. The number which are divisible by 2 are known as even number. Okay, and similarly odd number. Sir, odd number. Yes, अगर जो नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर 2 का मल्टीपल है वो इवन नंबर कहलाया. Divisible by 3. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, तब तो फिर जो 6 है वो तो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. सो इज इट बोथ ऑड एंड इवन नंबर? फिर ये क्या ऑड और इवन दोनों नंबर हो जाएगा? ऐसा नहीं है. ठीक है, और ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है डेव जो आपने 3/4 क्लास में ही पढ़ा होगा. ठीक है, तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भूलिएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए. ओके, ठीक है, वो ठीक है. 1, 3, 5 एग्जाम्पल्स है वो ठीक है, लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए ना. एग्जाम्पल्स पे तुरंत क्यों जा रहे हैं? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप एग्जाम्पल खुद क्रिएट कर लीजिएगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल पे मत जाइए, रोट लर्निंग पे मत जाइए. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए. कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिएगा, एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट बाय योरसेल्फ. ओके, ठीक ना. तो पहला तो हमने देखा कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हों वो इवन नंबर कहला रहे. द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 और द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 इज नॉन एज इवन नंबर. राइट, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हों या फिर 2 का मल्टीपल हो वो नंबर इवन नंबर कहलाए. तो ऑड नंबर कौन कहलाएंगे? जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे. दैट्स टू सिंपल. दो केस है. पहला है कि विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2, और दूसरा केस है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, which is not divisible by 2. ठीक है, या फिर मल्टीपल भी हम कह सकते हैं, विच इज द मल्टीपल ऑफ 2 और विच इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2. तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हों वो हमारे इवन नंबर कहला गए, और जो नहीं होंगे उनको हम ऑड बोल दिए. दैट्स ऑल, टू सिंपल. ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी. एंड अगर ऑड नंबर की बात करें तो 1, 3, ठीक है, 5, ठीक ना, उसके बाद 7, 9 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी. ठीक है, यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि अब जो 0 है तो इज 0 अ ऑड नंबर और अ इवन नंबर? इज अ इवन नंबर और ऑड नंबर? तो ये जो पॉइंट है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और इसको आप बताइएगा मुझे नेक्स्ट क्लास में. क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये पॉइंट आपको बताना है. ये बहुत इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा हमसे वाइवा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, या कहीं पर भी ऐसे पूछा जा सकता है. क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इज 0 an even नंबर और ऑड नंबर? Sir, they are not considered both also. नो, ऐसा भी नहीं है कि 0 को हम दोनों में कंसीडर नहीं करेंगे. Consider करते हैं, दोनों consider. नहीं, ये भी गलत है, दोनों भी कंसीडर नहीं होगा.
किसी एक ग्रुप में तो इसे रखना है। अब हम किस में रखेंगे, 2 में या इवन में या ऑड में, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको लेना है, ठीक है, करना है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्या कीजिए, पहले इतना नोट डाउन कीजिए। एक्चुअली ना मैं इवन और ऑड इसीलिए बताया क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे बताना था आपको कि नेचुरल नंबर में फर्स्ट इवन नंबर कौन होता है और फर्स्ट ऑड नंबर कौन होता है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए मुझे एक बार रिकॉल करना पड़ा इवन और ऑड क्या है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता तो शायद हमारा ये 10 मिनट्स जो 5 मिनट्स है ये वेस्ट नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है। अब बोलिए क्या बोल रहे हैं। 0 इवन में आता है। कैन यू एक्सप्लेन इट, व्हाई 0 विल बी अ इवन नंबर? बिकॉज हम 0 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर ही नहीं आया। यस, वेरी गुड, है ना, कि जब आप 2 से 0 को डिवाइड करेंगे यू विल नॉट गेट एनी रिमाइंडर और 0 विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2, ओके। लेकिन अब यहां तो ये भी डाउट है कि जब हम 3 से 0 को डिवाइड करें तो भी तो रिमाइंडर नहीं बच रहा है और 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, 3 zeros are 0, है कि नहीं। तो अब यहां तो ये भी डाउट हो गया। अब क्या होगा, 0 इज अ इवन नंबर और ऑड नंबर? सर ऑड नंबर में 1 से स्टार्ट होता है सर। ओके, वो ठीक है। तो ऐसे तो इवन नंबर में 2 से फिर स्टार्ट होता है, तो 0 जाएगा कहाँ फिर 0 कहाँ जाएगा? नहीं सर, हम 0 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे नहीं, ठीक है। आपको एक सॉलिड कंक्लूजन, सॉलिड लॉजिक देना होगा, ठीक है। सो टेक योर टाइम, दिस पॉइंट यू हैव टू टेल मी टुमारो और इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि 0 इज अ ऑड नंबर और अ इवन नंबर, ठीक है, क्लियर है। ये आपको पॉइंट अपने से सर्च करके लाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि गूगल या फिर इधर उधर से हेल्प ले लिए, ये नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप पहले इसको नोट डाउन करना चाहते हैं इवन ऑड को तो कर लीजिए, जबकि ये तो बेसिक चीज है, ठीक ना। खैर उसके बाद इधर नेचुरल नंबर्स को लिखिएगा। इसके बाद हम बताएंगे फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर और फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। लिखिए इसको। ओके, सो नाउ लेट्स सी हियर, all counting numbers are called natural number, right? After that we learn natural number starts from 1 and goes till infinity, okay. Now first odd natural number it will be, and first even natural number, okay. First even natural number. Yes, tell me, which number will be the first odd natural number? First odd natural number. Yes, tell me. First odd natural number. See here in the board, first odd natural number. A natural number which is the first odd. 1. Yes, it will be 1. Okay. Now first even natural number. वो भी 1. 2. It is 2. Okay. तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो पहला ऑड हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं पहला ऑड नंबर जो नेचुरल नंबर है, ठीक है। पहला इवन नंबर जो नेचुरल नंबर है, या फिर इवन नेचुरल नंबर जो पहला इवन हो, ठीक है।
तो ये हमने 3 पॉइंट्स अभी देखा कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर 1 होता है एंड फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर 2 होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ टेल मी, कैन वी फाइंड लास्ट नेचुरल नंबर? लास्ट नेचुरल नंबर, Last natural number. yes, can we find it? No. No, because natural number goes till Infinity. infinity. Can we find last odd natural number? Infinity. Yes. Last even natural number? Infinity. Infinity. For all, our answer will be infinity or not defined. ठीक है, क्लियर है, ठीक ना? Yes, sir. तो ये 2 पॉइंट नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके आगे अभी देख रहे हैं। यस, लेट्स सी हियर। सो हमने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, राइट। अब जब इसी काउंटिंग नंबर में हम क्या करेंगे, 0 को भी लिख देंगे, ठीक है, ठीक ना। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड, इसी को फिर क्या कहेंगे हम, बताइए। All counting numbers. इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड और नोन एज Counting numbers. अच्छा, जितना काउंटिंग नंबर्स है 0 को लेकर के उसको भी काउंटिंग नंबर ही बोलेंगे, तब तो फिर 0 को भी तो काउंटिंग नंबर बोलना चाहिए था। मैंने क्या बोला कि जितने काउंटिंग नंबर्स हैं अगर उसमें हम 0 को भी ले लेते हैं तो वो किस तरह के नंबर बन जाएंगे, टेल मी। यस, टेल मी। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज और इज कॉल्ड, ये सारा तो बेसिक चीज है ना देव, ये सब कैसे नहीं आपको आता है बताइए तो। यू आर द स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, इवन नंबर ऑड नंबर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, तो फिर नेचुरल नंबर क्या है? फिर तो नेचुरल नंबर में भी हमें 0 लिखना चाहिए था, फिर उसमें हम 0 क्यों छोड़े? यस, टेल मी। Yes. All counting numbers including 0 is called or known as whole number. इसको क्या कहा जाता है? whole number, ठीक है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं अगर हम उसमें 0 को भी इंक्लूड कर ले तो वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे वो? होल नंबर, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे एक ट्रिक लगा सकते हैं, होल कहने का मतलब पूरा, होल मीन्स पूरा, है ना। सो जितने काउंटिंग नंबर्स और उसमें 0 को इंक्लूड कर दिए तो ये सेट मेरा क्या हो गया, पूरा हो गया। तो हम इसे वहां से ऐसे करके याद रख सकते हैं कि सो इट इज नोन एज होल नंबर। इज इट क्लियर? क्लियर है? नोट डाउन कीजिए इसे। यस, नाउ लेट्स सी हियर। तो अभी हमने देखा 1 2 3 4 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, राइट। इसमें फिर हमने देखा 0, है ना। इसके इधर तो आपके काउंटिंग नंबर्स कहला गए, अगर हम 0 को भी साथ ले लेंगे तो वो होल नंबर कहलाए, राइट। अच्छा, ये जैसे काउंटिंग नंबर्स हैं तो ये साथ ही साथ आपके क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ओके, क्लियर है। तो जैसे इस तरह पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सिमिलरली क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स, है ना। जब आप 0 से और नीचे आएंगे या उसके पहले देखेंगे तो क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा पिछले क्लासेस में, है ना।
नेगेटिव नंबर्स क्या क्या हो गए, -1, -2, -3, -4, इट विल गो टिल -इन्फिनिटी। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक, और ये सभी कहलाएंगे नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है, ठीक ना। देखिए नेगेटिव नंबर्स को अगर आपको इजीली से समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज यू बोरो 1 रुपीज फ्रॉम योर फ्रेंड, ओके, सो नाउ दिस 1 रुपीज इज बोरोड अमाउंट, है ना, यू हैव टू गिव योर फ्रेंड दिस अमाउंट, राइट, है ना। सो नाउ यू आर in -1, now you are in -1, you are in a loan of -1, a loan of 1 rupees, you can say, right, है ना। तो this will be denoted as a नेगेटिव नंबर्स, तो उनको हम क्या कह सकते हैं कि वो नेगेटिव नंबर्स है, आप अभी पीछे चल रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव में है, ठीक ना। अगर आपने अपने फ्रेंड से 5 रुपीज बोरो किया तो वो 5 रुपीज कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट डे क्या करना होगा, उनको रिटर्न करना होगा, राइट। सो दैट अमाउंट, द 5 रुपीज इज अ बोरोड अमाउंट, है ना, और अ लोन अमाउंट, सो दैट विल बी डिनोट एज द माइनस, सो दिस इज -5, क्या हो जाएगा ये, -5, ठीक है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक ना। अब आता है कि जैसे आप पॉजिटिव नंबर्स में देखते थे, विच नंबर इज ग्रेटर, 1 और 2, विच नंबर इज ग्रेटर अमॉन्ग 1 और 2, 2, 1 and 4, yes sir, 1 and 4, विच वन इज ग्रेटर, 4, ठीक है। मतलब जैसे हम राइट साइड जाते जाएंगे हमारा वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। लेकिन आप इसमें जब देखेंगे नेगेटिव नंबर में, सो विच वन इज ग्रेटर, -4 और -1, -4, नो, -1, कौन सा बड़ा है, -1, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए अगर आपने फ्रेंड से 1 रुपीज बोरो किया, ठीक है, yes sir, और नेक्स्ट डे आपने 4 रुपीज बोरो किया, तो आपके लिए बर्डन कौन सा है, 4 या 1, बर्डन, बर्डन मैं बोल रहा हूं, आपके लिए बर्डन कौन सा हो गया, -4, 4 रुपीज, है ना, जो कि आपने बोरो किया था, वो अमाउंट क्या हो गया कि आपको अब ज्यादा देना होगा, नाउ यू हैव टू गिव मोर अमाउंट, राइट, है ना, ठीक है। तो इस वे में क्या हो गया कि आप कहीं ना कहीं ज्यादा पीछे आ गए हैं, है ना, ठीक है, आपका जो बोरोड अमाउंट है वो क्या है, ज्यादा है, इट्स मीन आप कहीं ना कहीं जो लोन में है वो ज्यादा है ना, है कि नहीं, क्लियर है। तो इसीलिए जितना भी नेगेटिव नंबर्स में आप लेफ्ट साइड जाएंगे वो और उतना कम होता जाएगा, ठीक है। अगर आप -10 लेंगे और -2, तो विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, -10 और -2, -2, ठीक है। मीन्स आप जितना इधर लेफ्ट साइड जाएंगे वैल्यू कम होते जाएगा, जितना राइट साइड जाएंगे वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, क्लियर है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, क्या कहा मैंने, ऑल पॉजिटिव नंबर नंबर्स, नेगेटिव नंबर नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज और कॉल्ड, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, बताइए, बोलिए। ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नॉन एज इंटीजर्स, क्या कहते हैं इसको, इंटीजर्स, ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, इंटीजर्स, क्लियर है, ठीक ना। और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज
डिनोटेड बाय द कैपिटल जेड, ठीक है, कैपिटल जेड, ओके। Yes, sir. दिस इज द notation for integer. Z means integer, z, or you can say z, ठीक है। So it is denoted by the capital letter Z, okay, क्लियर है। तो इंटीजर्स क्या हो गए, जितने पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये सभी इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक ना। अगर नंबर लाइन में आपको शो करना है, किसमें दिखाना है, नंबर लाइन में, ठीक है। अगर आपको नंबर लाइन में शो करना है इंटीजर्स को, तो बीच में हम क्या करते हैं, एक जीरो देंगे, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस पे राइट साइड में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स, और यू कैन से पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। और लेफ्ट साइड में इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, ये जो गैप होगा वो इक्वल होगा, ये नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव नंबर आएंगे इधर, ठीक ना। क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स, जो कि माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, क्लियर है। तो नंबर लाइन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी इंटीजर्स को, तो बीच में आपका जीरो, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स या फिर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और जीरो आपका बीच में होता है, क्लियर है। और सबका डिस्टेंस या गैप सेम होगा, ठीक ना, क्लियर है। राइट साइड प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, क्लियर है। एनी डाउट, Yes, no doubt, sir. नो, है ना। अच्छा, अब मुझे बताइए, हमने कुछ फ्रैक्शंस पढ़ा है, जैसे 1/5 है ना, 0.5, ठीक है, क्लियर है। अगर हम नेगेटिव में भी लेते हैं तो -2/3, ठीक है, या फिर -0.31, क्या ये सब इंटीजर्स कहलाएंगे, टेल मी, क्या ये सब इंटीजर्स कहलाएंगे, हाँ सर। नो, ये सब इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है, ये सब इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक ना, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि आप इसे डायरेक्टली नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक ना। या फिर आप कह सकते हैं कि ये सब हमारा कोई भी नेचुरल नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग के लिए आप अलग अलग एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, ठीक ना। वो फिर अलग अलग, वो डीपली कॉन्सेप्ट जो जब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे। मेनली अभी समझना है कि ये सब इंटीजर्स नहीं होते हैं। इंटीजर्स आपका पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और एक होल नंबर होगा, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव डेसिमल्स, ये सब इंटीजर्स नहीं होते हैं, क्लियर है, ओके। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जी, राइट, है ना, ओके। तो इसको नोट डाउन कीजिए। सर मैं वॉशरूम जाके आ सकता हूँ क्या? श्योर, थैंक्स।